নন্দনম দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। আজ আমরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা পাঠ করব। পরম জ্ঞানী পরম ঈশ্বর প্রেমী শুকদেব ভাগবত কথা বলছেন মহারাজ পরীক্ষিতকে, যিনি ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত। 7 দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে। তাই তিনি সংসার থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়ে শ্রী ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে গঙ্গার তীরে বসে শুকদেবের কাছ থেকে ভাগবত কথা শুনছেন। আর সেখানে এসে মিলিত হয়েছেন বহু সংসার বিরাগী ঈশ্বরপ্রেমী মুনি ঋষিরা। ভাগবত কথা ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রথমে যার জন্য শুকদেব ভাগবত কথা বলেছেন সেই পরীক্ষিতের মনের অবস্থা নিজের মধ্যে আরোপ করতে হবে। অর্থাৎ যে পরিস্থিতিতে মনের যে অবস্থায় পরীক্ষিত ভাগবত কথা শুনছেন সেই রকম মনের অবস্থা হলে, ভগবানের প্রতি সেই রকম নির্ভরশীল হলে তবেই ভাগবতের অর্থ হৃদয়ে স্ফুরিত হবে। শুকদেবের কাছ থেকে শ্রী ভগবানের কথা শুনতে শুনতে 3 দিন কেটে গেছে। এই 3 দিন মহারাজ পরীক্ষিত এক কণা অন্ন অথবা এক বিন্দু জলও মুখে দেননি। তন্ময় হয়ে ভাগবত কথা শুনছেন। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিত যার কথা শোনাবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছেন, যিনি পরীক্ষিতের জন্মের সময় তার প্রাণদান করেছিলেন, যিনি পরীক্ষিতের হৃদয় দেবতা, সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা তো এখনও আরম্ভই হলো না। এদিকে 3 দিন কেটে গেছে, আর তো মাত্র 4টি দিন অবশিষ্ট আছে। তাই এবার পরীক্ষিত নিজেই সেই প্রসঙ্গ তুলেই শুকদেবকে প্রশ্ন করলেন। এরপর শুরু হচ্ছে ভাগবতের 10ম স্কন্ধের 1ম ও 2য় শ্লোক। এই 2টি শ্লোক দিয়েই পরীক্ষিত কৃষ্ণ কথার অবতারণা করলেন। মহারাজ পরীক্ষিত কৃষ্ণ কথা শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে শুকদেবকে প্রশ্ন করলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি চন্দ্র ও সূর্য বংশের রাজাদের কথা এই 3 দিন ধরে বিস্তারিতভাবেই বলেছেন। সুতরাং চন্দ্র বংশোদ্ভূত ধর্মপরায়ণ মহাত্মা যদুর কথাও বলেছেন। সেই যদুবংশে ভগবান বিষ্ণু বলরামের সাথে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখন আপনি আমাদের কাছে কৃষ্ণ বলরামের সেই মহাপ্রভাবময় লীলার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন। ভগবান বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্ম হচ্ছেন নির্গুণ, নিরাকার, সর্বব্যাপী। সেই তিনি জগতের কল্যাণের জন্য সগুণ সাকার রূপে দেহ ধারণ করেন। ভগবান জন্মরহিত হয়েও অধর্মের বিনাশের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। নিজে কর্তৃত্ব শূন্য হয়েও মানুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হন। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে ভগবান মানুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করে এমন সব মনোহর লীলা করেন যাতে মানুষের মন স্বভাবতেই তাঁর দিকে ধাবিত হয়। মনকে ভগবানমুখী করতে হবে, আর মনকে ভগবানমুখী করাই তখনই সম্ভব হবে যখন ভগবানের সাথে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ভালোবাসা না হলে ভগবানের দিকে মন যাবেই না। এখন প্রশ্ন হলো, কেমন করে ভগবানের সাথে এই ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়? শাস্ত্রে রয়েছে তাঁর রূপ চিন্তন, গুণকীর্তন এবং তাঁর লীলা স্মরণের দ্বারা ভগবানের প্রতি ভালোবাসা হয়। নরহরি ঠাকুর ছিলেন চৈতন্যদেবের একজন পার্ষদ। মহাপ্রভু লীলার বিষয়ে তিনি বলেছিলেন,
এই লীলা আমি সবিশেষ লিখে রাখতে চাই, কিন্তু আমি তো লিখতে জানি না, ভাষা জ্ঞানও আমার নেই। তবুও মহাপ্রভুর এই লীলা একটু দিগদর্শন রেখে যাব, যাতে ভবিষ্যতে কোনো ভাগ্যবান এই দিগদর্শন থেকে মহাপ্রভুর পরম মনোহর লীলা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে। আর তখন মহাপ্রভুর এই লীলা শ্রবণে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হবে। গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা। সুখদেব বললেন, কোনো এক সময় অসংখ্য দৈত্যের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া পৃথিবী একটি গাভীর রূপ ধরে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, ওষুধে অত্যাচার আমি আর সহ্য করতে পারছি না, আপনি এর প্রতিকার করুন। ব্রহ্মা তখন অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে স্তব করতে লাগলেন। স্তব করতে করতে ব্রহ্মা সমাধিস্থ অবস্থায় শ্রী ভগবানের বাণী শুনে দেবতাদের বললেন, ক্ষীরোৎপতি বিষ্ণু পৃথিবীর দুঃখের কথা আগেই জেনেছেন এবং তার দূর করবার জন্য তিনি নিজেই এইবার স্বপার্শ্বদ বসুদেবের পুত্ররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। ভগবানের অবতরণের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়ে সুখদেব আবার বলতে শুরু করলেন যে কোনো এক সময়, সুখদেব বললেন, কোনো এক সময় মথুরায়, যেখানে শ্রী ভগবান সর্বদা বিরাজ করেন, সেই পুণ্যভূমি মথুরায় সুরবংশীয় বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে নবপরিণীত পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে স্বগৃহে যাওয়ার জন্য রথে আরোহণ করলেন। সেই সময় উগ্রসেনের পুত্র কংস তাঁর ভগ্নী দেবকীর প্রীতির জন্য নিজেই সেই রথ চালাতে লাগলেন। বর বধূকে নিয়ে যে রথ চলছে, সেই সময় কংসের প্রতি দৈববাণী হলো, রে মূর্খ, তুই যার রথের সারথি হয়েছিস তাঁরই অষ্টম গর্ভের সন্তান যে তোকে বধ করবে। আকাশবাণী শুনি সেই দুরাত্মা কংস তখন খড়গ হস্তে দেবকীকে বধ করবার জন্য তার কেশ ধারণ করল। বসুদেব তখন সেই ঘৃণিত কার্য করে নিষ্ঠুর কংসকে ভগ্নী বধ থেকে নিবৃত্তি করবার জন্য বলতে লাগলেন, হে কংস, যারা বীর তারা তোমার বীরত্বের প্রশংসা করে, আর তুমি হচ্ছ ভোজবংশে যশবর্ধনকারী। সুতরাং তোমার পক্ষে ভগিনীবধ বিশেষত এই বিবাহ উৎসবের দিনে শোভা পায় না। সাধারণ মানুষ প্রাণের ভয়ে এইভাবে অত্যাচারী চাটুকারিতা করে থাকে, কিন্তু বসুদেবের মতো ধার্মিক সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে এই রকম চাটুকারিতা শোভা পায় না। বসুদেবের কথা একটি অন্তর্নিহিত বিপরীত অর্থ আছে। গুণ অর্থাৎ গৌণ নিকৃষ্ট, অর্থাৎ হে কংস, বীরগণ যাদের বীরত্বের প্রশংসা করেন তাদের কাছে তুমি হচ্ছে অতি তুচ্ছ। তা না হলে তুমি কি কখনো প্রাণের ভয়ে নিজের ভগ্নীকে বধ করতে পারে? যারা বীর তারা কখনই সহায়হীন দুর্বল স্ত্রীলোকের কাছে বীরত্ব প্রকাশ করে না। আর তুমি হচ্ছ প্রকৃত ভোজ ও যশস্কর। তোমার হতে ভোজ বংশে যশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, কেননা সকলেই বলছে যে ভোজ বংশে উগ্রসেন প্রভৃতি মহানুভব রাজারা জন্মেছেন। এই পাপমতি কংস সেই মহান বংশের কলঙ্ক স্বরূপ। বলছেন, তুমি যদি ধার্মিক হতে তবে কেউ কিছু বলতো না, কারণ ভোজবংশের মতো পবিত্র বংশের ধার্মিক লোকেরাই জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার পাপ কর্ম দেখে লোকেরা তোমার পিতামহ গুণগান করছে। তুমি যদি এমন গুণের সাগর, তুমি যে কেবল ভগ্নীবধেই তৃপ্ত হবে তা তো মনে হচ্ছে না। তোমার অনাচারে এতদিন পর্যন্ত যে ভোজবংশ ধ্বংস হয়ে যায়নি, ইহাই আশ্চর্য। দুষ্ট কংস বসুদেবের কথায় অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে না পেরে বোকার মতন প্রথম অর্থটি ভেবে গ্রহণ করেছিলেন। হে কংস, তারপর শোনা গেল, বলছি, হে কংস, আকাশবাণী যা বলেছে তাতে তো দেবকী থেকে তোমার কোনো ভয়ের কারণ দেখা যাচ্ছে না। তবে যেহেতু দেবকীর পুত্র থেকে তোমার মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে, তার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে দেবকীর পুত্র জন্মানো মাত্রই আমি তোমার হাতে অর্পণ করব। ভাবখানা এই যে নবজাত শিশু নিতান্তই দুর্বল, সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না,
কিন্তু তুমি তাকে অনায়াসেই বধ করতে পারবে। অতএব দৈববাণী হলেও এইভাবে শিশুদের বধ করে তুমি দৈববাণীকে অতিক্রম করতে পারবে। সুতরাং এখন তোমার দেবকীকে বধ করবার কোনোই দরকার নেই। কংস জানত যে বসুদেব কখনোই মিথ্যা বলে না, তাই বসুদেবের কথায় বিশ্বাস করে কংস তখন দেবকী বধে নিবৃত্ত হয়ে স্বগৃহে চলে গেল। বসুদেব তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তিনি দেবকীকে রক্ষা করতে পেরেছেন ভেবেই সানন্দে নিজের গৃহে ফিরে গেলেন। এইভাবে বসুদেব দেবকীর বিবাহ উৎসব শেষ হল। কংস তখন বসুদেবের সত্যনিষ্ঠ এবং শত্রু মিত্রের সমভাব দেখে সন্তুষ্ট হয়ে হাসতে হাসতে বসুদেবকে বলেন, এই পুত্রটি থেকে আমার তো কোনো ভয় নাই, প্রথম পুত্রের জন্মের পর, সুতরাং তুমি একে ঘরে নিয়ে যাও। দৈববাণী বলেছে যে তোমার অষ্টম পুত্রই আমার মৃত্যুর কারণ হবে। বসুদেব তখন সেই পুত্রটিকে নিয়ে ঘরে গেলেন বটে, কিন্তু কপটমতি কংসের কথায় বিশ্বাস করতে পারল না। তখন দেবশ্রী নারদ দেখলেন যে কংস যদি বসুদেবের দেবকীর সাথে ভালো ব্যবহার করে তবে কংসের পাপের মাত্রা পূর্ণ হতে দেরি হবে, সুতরাং ভগবানও শীঘ্র অবতীর্ণ হবে না। এই রকম চিন্তা করে দেবশ্রী নারদ তখন জগতের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যদেব বধের উপায় স্থির করে কংসের কাছে এসে বললেন, হে মহারাজ কংস, এই যে বসুদেব দেবকী এরা কিন্তু মানুষ নয়, এরা দেবতা। এরা শুধু এরাই নয়, তোমার অনুগত ভোজবংশীয় যেসব জ্ঞাতি রয়েছে তাদেরও দেবতা বলে জানবে। পূর্ব জন্মে তুমি হিরণ্যাক্ষের পুত্র কালনেমি নামক অসুর ছিলে, বিষ্ণু তখন তোমায় বধ করেছিল। এবারও বিষ্ণু তোমায় বধ করবার ফন্দি করছে। তুমি যে দেবকীর প্রথম সন্তানটিকে ছেড়ে দিলে এটা ভালো করলে না। নারদ এইসব কূট পরামর্শ দিয়ে চলে যাবার পর কংস বুঝতে পারল যে তাকেই বধ করবার জন্য এবার বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। তখন সে বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে আবদ্ধ করে ভগবান বিষ্ণু, যিনি জন্মরহিত, তার জন্মের আশঙ্কায় দেবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তাদের একে একে বধ করতে লাগলো। কংসের অত্যাচারে মাত্রা যখন এতই বেড়ে গেল তখন সে নিজের পিতা মহারাজ উগ্রসেনকে পর্যন্ত বন্দি করে সৌরদেশ মথুরামণ্ডল ভোগ করতে লাগলো। এইভাবে কংস দেবকীর 6টি সন্তান বধ করবার পর দেবকীর সপ্তম সন্তান, তার অপর নাম অনন্ত, তিনি দেবকীর আনন্দ এবং দুঃখ বর্ধন করে তার গর্ভে আবির্ভূত হলেন। আনন্দ এই জন্য এরপরেই শ্রী ভগবানের আবির্ভাব হবে। তাঁর আশায় বুক বেঁধে তাঁরা এত কষ্ট সহ্য করেছেন, যাকে পাওয়ার আশায় তারা যুগ যুগ ধরে তপস্যা করেছেন, সেই ভগবান এরপরই আসবেন। আর দেবকী দুঃখ দূর হবে হলো এই ভেবে যে পূর্বে 6টি সন্তানের মতো কংস এটিকে বধ করবে না। এইবারেই সুখদেব শ্রী ভগবানের আবির্ভাবিক কথা বলছেন। সর্বজগতের যিনি আধার, সেই সর্ব আনন্দময় শ্রী ভগবানের আধারে সর্বব্যাপী ভগবানকে গর্ভে ধারণ করেও দেবকী বসুদেব প্রভৃতি 2-1 অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া আর কারও কাছে আনন্দদায়িনী হতে পারেননি, কারণ তিনি যে তখন কংসের কারাগারে আবদ্ধ। ভগবান দেবকীর গর্ভে অবস্থিত থাকায় দেবকীর অঙ্গচ্ছটায় তখন সমস্ত কারাগার উদ্ভাসিত হয়েছিল। এই অবস্থায় একদিন কংস দেবকীকে দেখে মনে মনে ভাবতে লাগলো, এইবার আমার প্রাণহন্তা শ্রীহরি এর গর্ভে এসেছে, কারণ এর আগে তো কখনো দেবকীর এইরকম অঙ্গকান্তি দেখিনি। এইভাবে সর্বদা ভগবানের জন্মের কথা চিন্তা করে করে কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।
Maharaj, till 7:50, 15 minutes. Shri Gurubhyo Namah. Vasudevasutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Krishnam Vande Jagadgurum. Today we will be Maharaj will be talking about Sri Krishna. ज़्यादातर हम लोग कृष्ण को माखन चोर कृष्ण, इन कन्नड़ इट इज बेन्ने कृष्ण, माखन कृष्ण। आप जानते हैं जगत में मक्खन लगाने से काम जल्दी हो जाता है, जितना भी देखिए आप। तो आज के अवसर में टुडे वी आर वेरी मच हैप्पी टू वेलकम एंड इंट्रोड्यूस स्वामी सुखदेवानंद जी, इज प्रेजेंटली द सेक्रेटरी ऑफ शारदा पीठ। Maharaj, I just give a brief introduction of Maharaj. Maharaj joined in 1979 under Swami Gautamanji in Along when Gautamanji was secretary, and for almost for 11 years he was there in Along. From there he was posted to Agartala. From 89 to 1992 he was there in Agartala, and in Rahara, our big institution is there, educational institution. He was there for 20 years. From then he was posted to in 2012 in Chennai, and to Chennai he was for 12 years. And presently he is the secretary from 2023 of Sharda Peeth. I once again wholeheartedly welcome Maharaj on behalf of all the Maharaj here and also the devotees जो यहाँ पर भक्त लोग उपस्थित हैं, उनकी ओर से हम सादर आमंत्रण करते हैं और महाराज को निवेदन करते हैं श्री कृष्ण के जीवन के बारे में थोड़ा सा चिंतन मंथन करें। ओवर टू स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज यही शुभ संध्या जन्माष्टमी की जो संध्या है, इस अवसर पर पहले ही मैं आप सब लोगों को अपने हृदय का श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ और उसी के साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग 10-15 मिनट भगवान कृष्ण का अनुध्यान कर सकें। भगवान कृष्ण का जीवन जब हम देखते हैं तो उसमें बचपन से लेकर
कुरुक्षेत्र तक विभिन्न जो लीलाएं हैं, आज मैं आप लोगों के सामने कुरुक्षेत्र का श्री कृष्ण को लेकर कुछ दो चार बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण ही बहुत प्यारे थे। वो हम सब लोगों को बोलते थे, नाउ वी वांट द कृष्णा ऑफ द कुरुक्षेत्र। आप सब लोग जानते हैं, जो कुरुक्षेत्र में जे एक महान घटना घटी थी, वो है जे इस संसार के लिए भगवान ने भगवत गीता दी। और स्वामी विवेकानंद अक्सर कहते थे कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ भगवत गीता? इंटेंस एक्टिविटी in the midst of intense peace. That is the message of Gita. Intense activity, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। आज इसीलिए ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश और भी ज़्यादा प्रासंगिक है। इट इज़ मोर रेलेवेंट। हम सब लोगों को एक्टिविटीज तो करना पड़ता है, लेकिन वो एक्टिविटीज करते करते हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल करते हैं, और हम लोग अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है उसको खो बैठते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही कहते हैं कि तुम एक्टिविटी करो, तुम कर्म करो। कर्मण्ये वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम लोग भटक जाते हैं, काम करते करते हम लोग, कर्म करते करते हम लोग भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं हम लोग भटक जाते हैं इसलिए कि हम लोगों का अटेंशन पूरा ही कहाँ चला जाता है? फल की ओर चला जाता है। वी आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रिजल्ट्स रादर देन द मीन्स। स्वामी विवेकानंद कहते थे, यू गिव द मैक्सिमम इंपॉर्टेंस टू द मीन्स, उपाय। वो उद्देश्य अपना ही सफल होगा ही। आप अगर एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने अगर सब स्टेप्स धीरे 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 सब ठीक किया है, तो रिजल्ट कहाँ जाएगा? वो तो आना ही है, वो आना ही है। लेकिन हम लोगों का, सब लोगों का, आदमी का इन जनरल प्रॉब्लम क्या है कि वो भटक जाता है। उसका पूरा अटेंशन फल की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए वो उपाय जो होते हैं
स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं, उपाय और उद्देश्य, क्योंकि श्री कृष्ण को अगर समझना है तो ये दोनों के बीच में हम लोगों को ठीक से उद्देश्य क्या है और उसके लिए उपाय क्या है। आप लोग देखेंगे कि अक्सराई श्री कृष्ण को आप दोष भी देते हैं कभी कभी, कि इस भगवान ने ऐसा नहीं करना था, ये किया, ये बहुत बुरा था, ये था। लेकिन आखिर उद्देश्य क्या था? तो इसीलिए हम लोग जब भी कुछ कर्म करते हैं तो यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उद्देश्य ठीक से रखने के बाद में उपाय को लेकर, उपाय अलग अलग होते हैं और होंगे ही, क्योंकि आदमी की जो प्रकृति है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे किसी को कर्म योग अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान योग अच्छा लगता है, किसी को राजयोग अच्छा लगता है, किसी को भक्ति योग अच्छा लगता है। ये रुचि अलग होगी ही। अगर हम एक ही मां के 4 लड़के होते हैं तो हम लोगों में डिफरेंस होगा ही। तो डिफरेंस रहने से झगड़ना जरूरत है क्या? तो इसीलिए श्री कृष्ण जी, उनका होल लाइफ हम लोग अगर स्टडी करते हैं, पूरा संपूर्ण जीवन, तो श्री कृष्ण का जो जीवन में हम लोग यही पाते हैं कि उद्देश्य को ठीक रखो। इसीलिए श्री कृष्ण जी को जब दुर्योधन ने न्योता दिया था कि अपने राजभवन में खाने के लिए, लेकिन भगवान राजी नहीं हुए और भगवान चले गए विदुर के घर में। क्यों गए विदुर के घर में? भगवान, दुर्योधन ने तो काफी अरेंज किया था, लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? भगवान कहते हैं कि जहां पर धर्म नहीं है वहां पर मैं नहीं हूं। तो इसीलिए सब समय सोचना चाहिए कि जहां पर धर्म नहीं होगा वहां पर भगवान नहीं होंगे। तो यही रास्ता दिखाने के लिए भगवान ने कितना कोशिश किया। उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन लोग बोलते हैं श्री कृष्ण जी चाहने से तो युद्ध बंद कर सकते थे। अरे वो तो सब कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मानव शरीर में जब देह धारण करके आते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है। जैसे अगर श्री राम कृष्ण जी गला के रोग को क्यों लिए? अरे वो तो चाहते तो वो सब दूर कर देते थे। इसीलिए ये याद रखना है सब समय कि भगवान जब मानव शरीर धारण करके आते हैं तो उनका एक उद्देश्य रहता है। वो उद्देश्य है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आके धर्म को नष्ट करने के लिए नहीं आते हैं। और ये जो धर्म है, इमीडिएटली हम लोग धर्म का मतलब क्या समझेंगे कि कोई रिचुअल फॉलो करना वो धर्म है? बोल नहीं। धर्म शब्द जो आता है वो ध्री धातु से आता है। संस्कृत में जो ध्री मीन्स धारणे,
जो धारण करता है। तो इसका मतलब क्या है धर्म? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जाके सल्फ्यूरिक एसिड का धर्म क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, बोलते वो जहां पर गिरेगा वहां पर सब जला देगा, उसका वो धर्म है। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, उसका वो धर्म है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उसका धर्म है वो। तो भगवान आके हमको बोलते हैं कि इस धराधाम पर ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जो चल रहा है, देयर इज ए कॉस्मिक रिदम। जब तुम वो धर्म को नहीं मानना चाहता है, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, जैसे हम लोग बोलते हैं, मैं पाप करता जाता रहूंगा, खराब काम करता जाता रहूंगा, और उसका फल कौन भोगेगा? हम लोग बहुत कम काम करके ज्यादा आउटपुट चाहते हैं। इज इट नेचुरल? थर्मोडायनिक्स में कहते हैं कि यह कभी संभव नहीं होता है। लेकिन आदमी का मन इतना चालाक है कि वो कम देना चाहता है लेकिन पाना चाहता है बहुत कुछ। तो भगवान इसीलिए हमको सिखाने के लिए आते हैं कि साधन करना चाहिए मनुआ, भजन करना चाहिए, नित नावन से हरि मिले तो जल जंतु होई। अगर तुम समझ लिया कि रोज नहाने से ही भगवान मिल जाएंगे, तो जल जंतु 24 घंटा ही नहाते हैं। यू हैव टू टेक द स्पिरिट, इंप्लाइड मीनिंग। अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन देखा कि सामने अपने सब रिश्तेदारों को मारना है, इसीलिए श्री कृष्ण को बोले कि नहीं नहीं, ये बहुत खराब चीज है। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा सब मुख सूख रहा है, मैं ये काम नहीं करना चाहता हूं। लेकिन भगवान ने क्या बोले? भगवान थोड़ा सा हंसे, हंसकर बोले कि तुम पंडित के माफिक बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो आचरण है मूर्ख के माफिक है। स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते थे कि भगवत गीता का 2nd चैप्टर का 2nd जो श्लोक है, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, बोलती ये जो दुर्बलता तुम्हारे में आई है, ये तुमको शोभा नहीं देती है। कहां से आई? आज मेरे पास में उतना टाइम नहीं है, मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सब लोगों को ये चिंतन करने के लिए मैं प्रोत्साहित करूंगा कि श्री कृष्ण जी आके हमको क्या देना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद यही तो बार बार कहते थे कि जब अवतार आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मैं ऑलरेडी 15 मिनट हो गया है, तो इसीलिए मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या बोलूं। तो टुडे आई हैव गिवन यू ए वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, क्योंकि श्री कृष्ण का जीवन इतना अनोखा जीवन है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल सोचते हैं
कि वृंदावन की लीला अथवा दूसरी लीला, क्योंकि वो सब समझने के लिए उसका तो मन चाहिए, हम लोगों को पवित्र मन चाहिए। ये जो फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मेरे महाराज जो श्री कृष्ण का जन्म भागवत से जो पाठ किया, भागवत रचना क्यों शुरू हुई? वेद व्यास ने, ही इज द वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन, इतना इंटेलिजेंट आदमी और नहीं हुए हैं, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। तो नारद जी से वो पूछे कि अच्छा, मैंने ब्रह्म सूत्र रचना किया, इतना मैंने उसके ऊपर मैंने व्याख्या लिखी, पुराण रचना किया, महाभारत रचना किया, तभी भी मेरे मन में शांति नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आप भगवान की लीला का रचना नहीं किए हैं। यू सी, दैट इज द स्वीटेस्ट थिंग। हम लोग जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम में आएंगे, लेकिन लव इज द ओनली ग्रीस, वो फ्रिक्शन को कम करेगा। इसीलिए भक्ति चाहिए। आज मैं श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों के सबके जीवन में जे भक्ति आए। और वो भक्ति कैसे आ सकती है? जैसे प्रेमैक बिंदुम चिरदग्ध चित्ते विषिंच चित्तम कुरु न सुशांतम। माँ को जब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि माँ, तुम्हारा एक स्नेहाशीष का जो बिंदु, मेरा चित्त जल रहा है, तो यही प्रार्थना चाहे कृष्ण हो चाहे माँ हो, काली और कृष्ण दोनों एक ही है। तो इसीलिए मैं ये प्रार्थना करते मेरी वाणी को विराम देता हूँ। पुनराय सबको मेरे आंतरिक प्रीति नमस्कार। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। I hope I did not exceed the time. महाराज को धन्यवाद देते हुए, महाराज ने हम सबको एक होमवर्क दिया है, जाके थोड़ा क्या श्री कृष्ण संदेश क्या है करके। और आखिर में एक बहुत सुंदर से उन्होंने कहा, द ग्रीस ऑफ लव, इट अवॉइड्स द फ्रिक्शन। द लव ऑफ कृष्ण टू अर्जुना, रामकृष्ण टू नरेन विवेकानंद, and mother's love, that grease will avoid so much of friction. और फिर से मैं महाराज को, सुखदेवन जी महाराज को धन्यवाद देते हुए अभी हम लोग श्याम नाम संकीर्तन करेंगे। इसके बाद में विजय टीका श्याम नाम संकीर्तन करेंगे।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे बंशीधरं कृष्णं स्मयमानमुखाम्बुजं पीताम्बरधरं नीलं माल्यचन्दनभूषितम् राधाचित्त चकोरेन्दु सौन्दर्य सुमहोदधिं राधाचित्त चकोरेन्दु सौन्दर्य सुमहोदधिं परात्परतरं देवं ब्रह्मानन्दकृपानिधिम्। चंदन चर्चित नीलकलेवर पीत बसन वनमालिन् चंदन चर्चित नीलकलेवर पीत बसन वनमालिन् केली चलन मणिकुण्डलमण्डित गण्डयुग स्मितशालिन् चन्दन चर्चित नीलकलेवर पीतबसन वनमालिन् चन्दन चर्चित नीलकलेवर चन्द्रकचारु मयूरशिखण्डक मण्डलवलयितकेशम् प्रचुर पुरन्दर धनुरनुरञ्जित नेदुरमुदिर सुवेशम् चन्दन चर्चित नीलकलेवर पीतवसन वनमालिन् चन्दन चर्चित नीलकलेवर संचरदधर सुधा मधुर ध्वनि मुखरित मोहन वक्षम् बलित दृगाञ्चल चञ्चल मौलि कपोल विलोल बतंसम् चन्दन चर्चित नीलकलेवर पीतबसन वनमालिन् चन्दन चर्चित नीलकलेवर हारममलतरतार मुरसिदधतं परिरभ्य विदूरम् स्फुटतरफेन कदम्बकरम्बितं इव यमुना जलपूरम् चन्दन चर्चित
मालिन चंदन चर्चित नील कलेवर श्यामल मृदुल कलेवर मंडल मधिगत गौरदुकूलम नील नलिनमिव पीत पराग पटल भरबलयित मूलम चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बन मालिन चंदन चर्चित नील कलेवर वदन कमल परिशीलन मीलित मिहिर समकुंडल शोभा बंधु जीव मधुराधर पल्लव मुल्लसित स्मित शोभा चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बन मालिन चंदन चर्चित नील कलेवर विशद कदम्ब तले मिलितं कलिकलुष भयं शमयन्तं करचरणोरसि मणिगणभूषण किरण विभिन्न तमिश्रं चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बन मालिन चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन शशि किरणोच्छुरितो धर जलधर सुंदर सकुसुम केशम तिमिरोदित विधुमंडल निर्मल मलयज तिलक निवेशम चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बन मालिन चंदन चर्चित नील कलेवर श्री जयदेव भणित विभव द्विगुणीकृत भूषण भारम् प्रणमतरिदि विनिधाय हरिं सुचिरं सुकृतोदय सारम् चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बन मालिन चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बन केली चलन मणिकुंडल मंडित गंडयुग स्मित शालिन चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बन मालिन चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बन मालिन चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बन मालिन।
सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम लक्ष्मी सेवित पदयुग श्याम सुरमुनिवर गणयाचित श्याम भूभारोधरणाथित श्याम लोकबंधु गुरुवाचक श्याम धर्मस्थापनशीलन श्याम स्वीकृत नरतनु सुरवर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद मायाधीश्वर चिन्मय श्याम यादव कुल संभूषण श्याम नंद यशोदा पालित श्याम श्रीवशांकित बालक श्याम मारित माया पूतन श्याम सकटासुर खल भंजन श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन दामोदर गुण मंदिर श्याम यमलार्जुन तरु भंजन श्याम गोपी जन गण मोहन श्याम अगणित गुण गण भूषित श्याम अघबक राक्षस घातक श्याम कालिय सर्प विमर्दन श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन जय वृंदावन चरवर श्याम गोचारण रत गोधर श्याम बर्ह सुशोभित चूड़क श्याम गललंबित बनमालक श्याम अग्रज बलभद्रान्वित श्याम गोपबधूहृदय स्थित श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम सर्वात्मक सर्वेश्वर श्याम धेनुक खर बधकारक श्याम सुरेंद्र पूजन वारक श्याम पर्वत पूजन कारक श्याम सुरगण प्रार्थित संगद श्याम निरु
तोषणश्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम आराधक विधि हर श्याम गोपी भावित प्रिय कर श्याम नंदित नंद सुनंदन श्याम वैकुंठेश नराकृति श्याम कालिंदी तटचारण श्याम मोहन मुरली बादन श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन रास महोत्सव खेलन श्याम आनंदामृत वर्षण श्याम बहुविध शरीर धारण श्याम नाना लीला कौतुक श्याम ध्वज बजरंगी मृदुपद श्याम समस्त लोकालादक श्याम नातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम वृषभारिष्ठ निपीडक श्याम विधिगत दर्प विनाशक श्याम रुचिर स्वरूप जनार्दन श्याम नीलकलेवर चिद घन श्याम साधक मति संशोधन श्याम लीला नटन मनोहर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम गोपी जनगण पूजित श्याम राधा वेणी शोभक श्याम अक्रूराथित श्लेषद श्याम कृतरथयानारोहण श्याम ब्रजनारी कुलवारित श्याम सखी गणदाहद विरह श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम मथुरापुर जन मोहक श्याम सनकादिक मुनि चिंतित श्याम मतरज कगल घातक श्याम शुभ पीतांबर धारक श्याम मालाकार सुपूजित श्याम
ब्रह्म सुपूर्ण परात्पर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम कुब्जालेपनानन्दित श्याम वक्राकृत्य रजुकारक श्याम घातित गजमदलेपन श्याम केशिक कंशनिसूदन श्याम पद्मगदाधर कीर्तिदश्याम उग्रसेन वरराजदश्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम राम कृष्ण हरि गिरिधर श्याम माधव केशव नर हरि श्याम मृत गुरु जीवक श्याम भीष्म कवाला रोहित श्याम द्वारावती संस्थापक श्याम रुक्मिण्यर्थ सुहारक श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नरकासुरवधकारक श्याम अदिति समर्पित कुंडल श्याम स्वधर्म तत्पर मोक्षद श्याम शिशुपाला सुविघातक श्याम बाणासुर भुज भेदन श्याम दानव वर मधुसूदन श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम चक्र प्रताप सुदर्शक श्याम पौंड्रक दर्प विमर्दक श्याम जनिदायक श्याम इंद्र विधि सुसेवित श्याम सखी भक्ताजुन सारथि श्याम पांडव कुल सम्मानित श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम गीतामृत संदोहक भीष्म प्रतिज्ञा पालक श्याम विश्वरूप दर्शक श्याम अत्यंतिक सुख साधक श्याम भक्त कृपार्णव भर्गद श्याम
शरणागत जन तारक श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम भक्त काम संपूरक श्याम मंगल कर गतिदायक श्याम ऐश्वर्यादिक षड्गुण श्याम विश्वाश्रय जन पालन श्याम सर्वचराचर धारण श्याम पूर्ण चराचर खेलन श्याम संत सनातन सुंदर श्याम द्वारवती पुर प्लावन श्याम कुरु यदुकुल संहारक श्याम वदरी संप्रहितोद्भव श्याम प्रभास गमना मोदित श्याम योग स्थित यदुनंदन श्याम सुरगण वंदित मोदन श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम देवक्यात्मज दैवत श्याम मोहन नटनानंदन श्याम सुचित नरतनु त्याग श्याम जरलुब्धक शरवेदित श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम सृष्टि स्थिति लय कारण श्याम राधा माधव राधा श्याम सृष्टि स्थिति लय कारण श्याम राधा माधव राधा त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव गोविंदाच्युत यादव श्याम राधा माधव राधा श्याम गोविंदाच्युत यादव श्याम राधा माधव राधा
गुणेश्वर श्याम नारायण हरि केशव श्याम राधा माधव राधा श्याम नारायण हरि केशव श्याम राधा माधव त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम मुकुंद मुरहर वामन श्याम राधा माधव राधा श्याम मुकुंद मुरहर वामन श्याम राधा त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव जय जय गोपी वल्लभ श्याम राधा माधव राधा श्याम जय जय गोपी वल्लभ श्याम राधा माधव त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव अनुपम सुंदर मोहन श्याम राधा माधव राधा श्याम अनुपम सुंदर मोहन श्याम राधा माधव त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम अखिल रसामृत सागर श्याम राधा माधव राधा श्याम अखिल रसामृत सागर श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम सृष्टि स्थिति लय कारण श्याम राधा माधव राधा श्याम गोविंदाच्युत यादव श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम नारायण हरि केशव श्याम राधा माधव राधा श्याम मुकुंद मुरहर वामन श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव जय जय गोपी वल्लभ श्याम राधा माधव राधा श्याम अनुपम सुंदर मोहन श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम
अखिल रसामृत सागर श्याम राधा माधव राधा श्याम अखिल रसामृत सागर श्याम राधा माधव राधा माधव राधा श्याम राधा माधव राधा श्याम राधा माधव राधा श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं वन्दे श्रीधरं भक्तवत्सलं नवीननीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकम्। ओमिति श्रीश्यामनाम संकीर्तनं समाप्तम्। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय राजा महाराज जी की जय। जय श्री लिंगराज महाप्रभु की जय। जय श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद
गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो 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 गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि 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 गोपाल बो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि 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 गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आमर आज अनुष्ठान ये शेष है। आपण मैंने समस्त अनुरोध ऑफिस पाखे आपन को हाथ हाथ से प्रसाद दिज्व आप प्रसाद ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।